Namaskar and Jai Hind aspirants. Welcome to the Nahan Jyoti Education. My name is Dinesh Nandurbari. Guys, if you are preparing for the MPSC Civil Services Examination 2025, then today's session is going to be helpful, very helpful for you. Today, we are going to discuss about Indian history. As you know, the syllabus for MPSC examination is very vast. It includes many subjects. But among all those subjects, one of the important topic is history. History have a very good weightage into the MPSC examination, whether it is a prelims examination, mains examination. This subject will help you at various levels, है ना? Directly or indirectly, correct? So in this today's session, we are going to talk about importance of Indian history from the point of view of MPSC prelims examination only. As you know that 28th of September is the date of MPSC prelims. So around five and a half month is the time we left for the MPSC preparation. So I'm going you to give a strategy how to solve हिस्ट्री क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जामिनेशन, है ना? हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि हिस्ट्री को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए. बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. फॉर मेनी ऑफ देम इट्स अ टू बोरिंग सब्जेक्ट, फॉर देम इट्स अ टू फैक्चुअल सब्जेक्ट्स, बट when they consider the history as very factual and boring subject, then they pay less attention toward these subjects and which cost them into their merit, है ना? आप लोग देखोगे कि बच्चे जो है ना हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, उसके कारण क्या हो जाता है कि वो जो मेरिट है, कट ऑफ है, उसको अचीव करने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है. इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम एमपीएससी एग्जामिनेशन. I'm going you to tell you the weightage of Indian history in examination pattern. Then we are going to talk about study strategy for Indian history, and then lastly I'm going to refer you some reference books and important books which will help you to prepare for your history subject. Okay, so let's start the session. First thing first, we are going to talk about importance of Indian history in the MPSC examination, है ना? जैसे कि आपको पता है कि एमपीएससी की प्रीलिम्स जो होती है, सो इन एमपीएससी प्रीलिम्स देयर आर टू सब्जेक्ट्स, GS1 and GS2, paper 1 and paper 2, correct? So in GS1 we have a numerous subject, है ना? 200 मार्क्स की एग्जाम होती है, 100 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू लेवल पे. एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शंस हो गए. सो फॉर 200 मार्क्स देयर आर 100 एमसीक्यूज which includes many subjects. For example, it includes current affair, Indian polity, Indian history, Indian geography, Indian economy, general science, environment. So these are the different subjects which comes under the only one paper, GS1 पेपर, है ना? इन सारे सब्जेक्ट के मिलके कुल मिला के 100 सवाल पूछेंगे. नाउ MPSC is going to ask you questions in GS1 or in prelims from the history subjects, around 15 questions. So the weightage of history in MPSC prelims question paper is around 15 questions. उसी से एंशियंट मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, महाराष्ट्र हिस्ट्री, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे वहां पे, है ना? सो यू कैन सी हियर आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस विच इज अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स. 200 मार्क्स में से 30 मार्क्स के जो सवाल आ रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, वो बस एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं, दैट इज हिस्ट्री, है ना? तो हिस्ट्री से ही आपका 30 मार्क्स यानी 15 सवाल आ रहे हैं वहां पे. 15% ऑफ द टोटल वेटेज goes to the history. So it simply state us that we cannot eliminate history, है ना? वो बोरिंग लगता है किसी बच्चों को वो काफी लेंदी लग जाता है ना? इसके कारण वो उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके कारण उनको यहाँ पे इतना लॉस हो सकता है वहां पे, है ना? In this lecture, I am going to talk you about the simplest strategy to learn history. Okay, so this is the weightage. Apart from these prelims, even history have a huge weightage in mains examination. If we talk about mains will have total 9 papers. Mains will have total
9 पेपर्स है ना, पेपर 1 to पेपर 9. Among these 9 पेपर there is a paper called as GS1. इसके अंदर भी GS आएगा, जनरल स्टडीज 1, which includes इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड सोशल इश्यूज. इसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. ऑलमोस्ट 250 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन होता है, ये जीएस पेपर होता है. 250 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के अंदर ये सवाल, ये क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट आएगा आपको वहां पे. सो दैट मीन्स in mains, in descriptive pattern also, in mains you will encounter with the history, है ना. अराउंड 100 and 125 मार्क्स, 100 से 125 मार्क्स के बीच में यहाँ पे वेटेज आएगा डायरेक्टली, है ना. तो हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी, है ना. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एलिमिनेट द हिस्ट्री. तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर गोइंग टू दैट, Gyan Jyoti Education is offering you a new integrated batch for UPSC and MPSC preparation. That batch is called as Nirman batch. It is a fully integrated batch जहां पे prelims, mains, interview इसकी प्रिपरेशन की जाएगी. 21 अप्रैल 2025 से हम लोग ये बैच लॉन्च करने वाले हैं. If you are preparing for UPSC examination and even MPSC examination, and if you are looking for integrated batch, this is the right time for you to enroll in this batch. Contact on this number 7788 799 2834. 788 799 2834. Contact on this number, you will get the required information regarding the Nirman batch. All right. So before starting preparation for the history, as we understand the importance of history in prelims as well as in mains examination, but before starting preparing for the history, one must have to learn what is the syllabus, because when you go into the notification and check for the syllabus of a particular subject, you will not get a comprehensive syllabus at that point. अगर आप MPSC की साइट पे जाओगे तो MPSC की साइट के ऊपर आपको कभी भी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस नहीं दिखेगा वहां पे, है ना. नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको दिखाई देगा वहां पे इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट एंड एक्सेट्रा, इस तरीके से लिखा होगा, 2 लाइन में खत्म कर देते. अब उसके अंदर पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है. सिंपली इतिहास में घटी हुई सारी घटनाएं हमारा सिलेबस तो नहीं हो सकता है, करेक्ट. सो दैट्स हाउ वी हैव टू मेक अ फोकस स्टडीज. अब ये फोकस स्टडीज आएगी कहां से, तो उसके लिए अलग अलग आपके सामने मेथड्स होते हैं. वी यूज डिफरेंट मेथड्स टू सेट अवर फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. Syllabus is one of the most important thing. If you don't have a syllabus, if you don't have an idea about the syllabus of any particular topic, then there is a likely possibility that you will get strayed into the exam for your during your examination preparation, है ना. आप भटक जाओगे वहां पे प्रिपेयर करते करते. क्यों? क्योंकि सिंपली आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. सिंपल फंडा है यहाँ पे हमको बहुत पढ़ना है ना. हमारे सिलेबस से रिगार्डिंग बहुत चीजें पढ़नी है. अब ये बहुत पढ़ने के चक्कर में बच्चे क्या हो जाते हैं, इधर उधर भटक जाते. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन इज टू नो योर सिलेबस थोरोली. सारे टॉपिक्स के यहाँ पे आप सिलेबस चेक करोगे. जैसे आज हम यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर कौन से टॉपिक्स आने वाले उसका सिलेबस हम यहाँ पे डिकोड करेंगे. इन शॉर्ट, अंडरस्टूड. सो सिलेबस के अंदर हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ सकते हैं. जैसे एमपीएससी पूरे सिलेबस को 4 मेन टॉपिक्स में डिवाइड करती है. एमपीएससी डिवाइड द होल सिलेबस इनटू द 4 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड महाराष्ट्र स्पेसिफिक हिस्ट्री. सो एमपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पॉइंट्स. It is only one subject. So as we seen here that MPSC is going to ask you 15 question out of the 100 from the history. Those 15 question are part of these 4 main topic: ancient, medieval, modern and Maharashtra specific history, है ना. So what is there in ancient history? So around up to 7th century AD, अप टू 7th century AD जो भी भारत के अंदर हुआ था वो सारा क्या था, एंशिएंट हिस्ट्री. सो अप टू 7th century AD व्हाटएवर हैपेंड इनटू द इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री.
What we are going to learn into the ancient history? So there are many topics. For example, we are going to talk about Stone Age. We are going to talk about Vedic Age, Harappa, then Maurya Samrajya, post Maurya, Gupta Samrajya, and Harshavardhana. Apart from this, we are going to talk about various religious movements during the ancient phase, that is Jainism and Buddhism. Jainism and Buddhism. So these are various issues we are going to delve in ancient history only, है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे पास. तो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हमको ये सारी चीजें पढ़नी वहां पे फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. स्टोन एज से शुरू करेंगे हम, है ना, पुराश्म युग, वहां से शुरू करेंगे तो अप टू द हर्षवर्धना. हर्षवर्धना वाज द लास्ट एंशियंट हिस्ट्री किंग विच वाज रूलिंग ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया अप टू द 7th century AD. वहां तक के जो भी इतिहास होगा वो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट होगा. सो इन एंशियंट हिस्ट्री वी आर गोइंग टू डेल विथ such numerous topic. After the ancient history, we are going to study medieval history. Ancient history के बाद हम लोग medieval history को पढ़ना शुरू करते हैं. What is there into the medieval history? As like ancient history, there are many topics involved into the medieval history, है ना? So from 7th century AD to up to 18th century और 19th to up to 19th century, जो भी समय है वो पूरा medieval history के अंदर आएगा. What we are going to learn into the medieval history? So there are many topics which involve into the medieval history. First thing first, we are going to talk about southern states. southern states के बारे में बात करेंगे हम लोग. फॉर एग्जाम्पल चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहामनी किंगडम्स, है ना, ट्राई पार्टी स्ट्रगल. तो ये सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत. What is Delhi Sultanate? How these Islamic ruler came to the India, how they attack on India, and how they establish rule over the India. Which are the different Islamic rulers who rule over the India? For example, we talk about Qutbuddin Aibak, Iltutmish, है ना? Then Khiljis, then Tughlaqs, then Lodhis. These all belong to the Delhi Sultanate. After Delhi Sultanate, we talk about Mughal Empire, है ना? So from Babur, we started the Mughal Empire, Babur, Humayun, Akbar, up to the Aurangzeb. Aurangzeb was not the last, but the was last most powerful ruler from the Mughal dynasty. So these are the Mughal dynasty. We are going to look into the deeply. Then after the Mughals, we are going to talk about Maratha Empire. So Chhatrapati Shivaji Maharaj established Maratha Empire, which grew. Then under the Peshwa, it became the empire, है ना, whose boundary reach up to the Afghanistan. So this is Maratha Empire. So these are the topics we are going to delve in medieval history. So after 19th century, we are going to talk about modern Indian history. What is there? We are going to study in modern history. So after 1857, 19th century, 1857 की क्रांति के बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते. What are the different topics involved into the modern history? So there are many topics. For example, advent of European, there are many European countries who came to the India, try their luck to settle their power into the India. For example, Portuguese, Dutch, Danish, है ना, French, British. Out of them, only the British survived into the India, who ruled for almost 200 years in India. Correct? So that is advent of European. Then fall of Mughals, है ना. Then company rule. Correct? Then we are going to talk about revolt of 1857. Then socio-religious reform movement. Socio-religious movements. Then lastly, we are going to talk about
national movement in India. National movements, which includes Swadeshi movement, non-cooperation movement, then civil disobedience movement, quit India movement, Gandhian faith, है ना, Subhash Chandra Bose and Indian National Army, revolutionary movement, leader like वीर सावरकर, भगत सिंह एंड ऑल दैट. तो ये सारी चीजें हम लोग नेशनल मूवमेंट के अंदर पढ़ेंगे. सो दिस इज द सिलेबस फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. Apart from this modern Indian history, for MPSC, we also need to focus on the Maharashtra specific history. Now, is there anything new into the Maharashtra specific history? No. Whatever national movement you are going to you are going to study into the modern history, we have to continue those national movement in Maharashtra specific history also. Then what is the new thing we will get into the Maharashtra specific history? So there are few things. For example, Maratha Empire. We have to study deeply into the Maratha Empire. Then there are certain social movements. For example, I read here Bhakti movement. है ना? Then the most important concept here is the social reformers. You can see, if you study the PYQs, then you will understand that almost half of the, or more than 50% of the questions from Maharashtra specific history comes from single topic, social reformer. MPSC have a habit to ask many questions on the social reformers in the name of Maharashtra specific history. Apart from social reformers, freedom struggle from the point of view of Maharashtra is also very, very important topic. So these are the two topics which you need to focus on the Maharashtra specific history. If you prepare for these two topics, I'm sure that more than 80% of the questions from the Maharashtra specific history is going to be dealt by you. है ना? ये बस आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है. वहां पे पीवाईक्यू जैसे पढ़ते जाओगे आप, वैसे वैसे आपको ये चीजें समझते आएगी कि अच्छा महाराष्ट्र स्पेसिफिक हिस्ट्री के अंदर एग्जैक्टली पूछ कहां से रहे, है ना. वो कुछ भी रैंडमली सवाल नहीं उठा रहे आपके सामने. महाराष्ट्र स्पेसिफिक जो नेता है, जो भी रिफॉर्मर्स है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स, उनके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं. महाराष्ट्र स्पेसिफिक कुछ मूवमेंट्स है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी मूवमेंट है, उनके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं वहां पे. सो दीज आर द की टॉपिक्स from the Maharashtra specific history, which you have to focus. So this is all about syllabus from the for MPSC prelims examination. Now let's talk about the resources. Another part of our today's session is resources, है ना. resources यानी कहाँ से पढ़ना चाहिए आपको, because in market there are number of books available in English, in Marathi, in Hindi also, particularly in Maharashtra, Marathi and in English. There are numerous books, particularly I am talking about history. बहुत सारी किताबें जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए. एक दिन आप एक किताब खरीद के लाते हो, दूसरे दिन आपका दोस्त बोलता है ग्रुप के अंदर कि यार उससे बेटर तो ये फलाना फलाना किताब है, इसको खरीद लो, इसको पढ़ो. हम ज्यादा सोचते नहीं है, हम जाते हैं उसको भी खरीद के लेके आते हैं. मैंने बहुत बार देखा है कि कोई भी किताब, जो स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट्स है, यहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है बहुत सारे, तो वो कोई भी किताब कंप्लीट भी नहीं करते, उतनी देर में वो दूसरी किताब लेके आते. क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई उनके दिमाग में. अंडरस्टूड? सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, रिस्ट्रिक्ट योर रिसोर्सेज, है ना. एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपको रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करना काफी जरूरी होता है. जस्ट इमेजिन यू हैव अ मल्टीपल सब्जेक्ट्स टू गेट कवर्ड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम. आप कितनी चीजें पढ़ सकते हो? अगर आपको एक छोटे से समय में बहुत सारी किताबें पढ़नी है, तब आप कितनी मैक्सिमम किताबें पढ़ सकते हो? देयर मस्ट बी अ लिमिटेशन, क्योंकि आपको बस हिस्ट्री नहीं कवर करना है ना. हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन 15 सवालों के ऊपर, 16 सवालों के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं है. ये चीजें हमको समझ में आनी चाहिए. तब अगर आप 6 महीने हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, है ना. ये भी तो उतनी ही सही सच्ची बात है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट अवर रिसोर्सेज. सो दैट्स व्हाई आई विल डिवाइड होल रिसोर्सेज इनटू 2 पार्ट. बेसिक रिसोर्सेस यानी बेसिक किताबें जो सबको पढ़नी ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड. आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, उससे लेना देना नहीं. आप क्या करोगे कि कुछ बेसिक किताबें उनको पढ़ोगे. सो फर्स्ट यू विल कंप्लीट योर बेसिक रिसोर्सेज, देन यू विल जंप इनटू द एडवांस रिसोर्सेज. सो आई एम गोइंग टू टेल यू बोथ रिसोर्सेज फ्रॉम द माय पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, विच आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट बेसिक रिसोर्सेज, so in basic resources, basically your textbooks are very, very important.
textbooks. I'm talking about textbooks. For example, there are two types of textbooks which are going to helpful for you in your preparation for your basic material, है ना? One is Maharashtra State Board textbooks, another is NCERT textbooks. These are the two types of textbook. Choose anyone. I preferably suggest you to go for the Maharashtra specific textbook, because MPSC have a habit to ask you a question about the Maharashtra specific question which are largely come from the textbook. So if you are preparing for the preparing from the Maharashtra textbook, then you will directly get access to those content from where MPSC is going to ask you the question. आपके पास डायरेक्टली वो कंटेंट होता है जहां से एमपीएससी लाइन बाय लाइन सवाल पूछ रही है आपसे, है ना? तो इट विल हैव अ एज in your preparation. Okay, so for basics always go for the textbook, whether it is NCERTs in English and state board. I am suggesting you go with the state board. Okay, if you are going with the NCERT, it doesn't matter because it also cover Indian history in full length and comprehensively. Okay, after the basic you need to go for the advanced books. So in advance there are multiple choices in front of you, है ना? Many people suggest you different books. It's your choice which books you want to refer. Okay, so I'm going to suggest you few books which are advanced books which are going to helpful for you. Okay, so let us discuss the books. So for ancient and medieval, NCERT and state board as a basic standard books are very important. You will first finish these standard books, basic books, है ना? Whether NCERT or state board, it's your choice. Okay, so go with the standard books, then you will shift to the advanced book. So in advanced book I will suggest you पूनम दहिया, ऑथर का नाम है. एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री इनकी एक किताब है. वो किताब काफी कॉम्प्रिहेंसिव और आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगी. वो आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के अंदर भी अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती है वहां पे. सो आई विल सजेस्ट अ सिंगल बुक written by the Poonam Dahiya. So that book will help you in ancient and medieval history. Okay, for modern history again go with the basic standard books, that is NCERT or state board. Just complete your NCERT and state board, then jump to the advanced book. For advanced book you can refer to the Bipin Chandra modern history, है ना? Modern history, a book written by the Bipin Chandra, is very popular among the students, and it is very comprehensive and easy to understand, है ना? Once you get the hold over the book, you will have a good hand over the modern history of the India. So NCERT and Bipin Chandra, these are the books which you can go for the modern history. For Maharashtra specific history, I will suggest you rely on the Maharashtra State Board books, है ना? Maharashtra State Board books will sufficient for you for preparing Maharashtra specific history in MPSC prelims examination. Okay, so Maharashtra State Board books are very sufficient. So these are the books I am suggesting you for the preparation of history in MPSC examination, but from the prelims point of view. Okay, now there is a different point of view between the prelims and mains, which I am going to tell you in the later slides. Okay, so these are the books. All right, let's move on. All right, so let's talk about strategies. Now the important part of the session is start here. Strategy. ज्यादातर बच्चों के लिए हिस्ट्री क्या हो जाती है ना, हिस्ट्री एक तरीके से सिरदर्द बन जाती है, क्योंकि मुझे ज्यादा जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मेरे सामने जो बच्चे बैठे होते क्लास के अंदर वो यही सवाल पूछते कि सर ये फैक्ट्स कैसे लर्न करें. अब देखो हमारा जो दिमाग होता है ना, ये दिमाग एक सेट पैटर्न में काम करता है. अब यहाँ पे आप जो भी पढ़ रहे हो, मान लो आपने एक दिन के अंदर 100 पन्ने पढ़ लिए. फॉर एग्जाम्पल यू रेड अबाउट 100 पेजेस, यू लर्न अबाउट द 100 पेजेस. So in the next day you are not going to recall all the 100 pages. More than 75% of the content you learn into the last day will be vanished. आप जितना भी कंटेंट पढ़ रहे हो उसमें से 75% से ज्यादा का कंटेंट आपका खत्म हो जाएगा. तो दिमाग में यही चीज हो जाती है वहां पे कि आप जो भी पढ़ते हो कल उसमें से थोड़ा सा ही आप रिटेन कर पाते हो. तो दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, है ना?
ये रिटेंशन कैपेसिटी होती है, मतलब आप कितनी चीजें याद कर सकते हो। बस यहीं पे बच्चे अड़ जाते हैं कि सर याद ही नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है ना। ये जो भगवान ने हमको भूलने की जो कला दी है ना, दैट इटसेल्फ गुड थिंग फॉर अस। अदरवाइज सोचो आप कि 20 साल पहले आपके साथ क्या होता, वही सोच सोच के आज खून जला रहे होते हम लोग, है ना। सो इट्स बेटर दैट वी फॉरगेट। बट ये जो भूलने की चीज है ना, ये हमारे प्रिपरेशन के अंदर हमको एक तरीके से अड़चन पैदा कर रही है। इट इज क्रिएटिंग अ रोड ब्लॉक इन अवर प्रिपरेशन। सो वी हैव टू रिमूव दैट रोड ब्लॉक बाय adopting some practices. Correct? So we are going to talk you about those practices which will help you to increase your retention capacity, जो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड रिगार्डिंग द हिस्ट्री। ऑलवेज रिमेंबर, हिस्ट्री मीन्स कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज, है ना। जब हम बचपन से सुनते आ रहे, टीवी पे सुनते, दोस्तों के साथ सुनते, कहानियां सुनते हम लोग, करेक्ट। तो बेसिकली यहां पे भी कहानियां ही हैं, बस सवालों के अंदर उन कहानियों से अलग अलग फैक्ट्स को उठाया जाएगा और हमारे सामने रखा जाएगा सवालों के अंदर, और फिर उसी से हमको आंसर करना पड़ता है ना। तो कभी भी हिस्ट्री को जो है ना, दो हिस्सों में बांट दो। हंसते हंसते पढ़ना है तो हिस्ट्री को दो हिस्सों में बांट दो। पहला पार्ट होगा उसका स्टोरीज, दूसरा पार्ट होगा फैक्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करोगे, पहले आप स्टोरीज के ऊपर फोकस करोगे, है ना, विदाउट फोकसिंग ऑन द फैक्ट्स। तो स्टोरीज के ऊपर फोकस करो। वंस स्टोरीज इज अब्सॉर्ब बाय यू, देन गो विद द फैक्ट्स, तब आप फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दोगे, है ना। अब ये करने से क्या होता है कि इंटरेस्ट पैदा होता है। जब तक कि आप उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे उस कहानी के अंदर, तब तक कि आप उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे। तो पहली ही चीज में, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, तो पहली रीडिंग में सारी चीजों को फैक्चुअली रटना बंद कर दो, कंप्लीटली बंद कर दो। दो रीडिंग दे दो। पहली रीडिंग में कहानी ऑब्जर्व कर लो कि कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ रही है, उस कहानी के अंदर फिर कुछ फैक्ट्स आप भूल भी जाओगे, डजंट मैटर। फिर आप जब सेकंड रीडिंग करोगे, तब सेकंड रीडिंग के अंदर आप उन फैक्ट्स के ऊपर फोकस करोगे जो कहानी के अंदर आपको दिखाई देंगी, है ना। सो दैट्स हाउ यू विल मेंटेन द इंटरेस्ट अबाउट द टॉपिक। आप टॉपिक का इंटरेस्ट मेंटेन कर सकते हो, है ना। ट्राई इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। पहले कहानियां सुनो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उसकी कहानी को समझ लो, क्योंकि हिस्ट्री है, इसके नाम में स्टोरी है। तो वी हैव टू फोकस ऑन द स्टोरीज। फर्स्ट फोकस्ड ऑन द स्टोरीज, कहानियों के माध्यम से पढ़ना शुरू करोगे, तब वही चीजें आसान हो जाती है ना। इट इज गोइंग टू वेरी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो whenever you are going to start your preparation, always focus on your notes. Always focused on your notes. Notes are the very very important part. Just I have told you that we have a fantastic gift to forget things, है ना। हम चीजें भूल सकते हैं, ये गिफ्ट है हमारे पास, लेकिन हमारी प्रिपरेशन के अंदर ये अड़चन पैदा कर रही है। सो दैट्स व्हाई हमको उन चीजों को कैसे याद रखना चाहिए जो हम भूल सकते हैं, तो उसके लिए हम नोट्स बना सकते हैं। क्या करना है आपको, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, कि मान लो आपने एक पन्ना पढ़ा, एक पूरा पेज पढ़ा आपने, है ना, तब क्या करना है आपको, उस पेज को पढ़ने के बाद, ढंग से पढ़ने के बाद, वहां पे समझने के बाद, फैक्चुअल कंटेंट भी दिमाग में उतर गया आपके, तब बाजू में रखो, एक पेन लो, कागज लो, कागज के ऊपर जो भी आपको याद आ रहा है जिस भी वे में, उसको नोट डाउन करते जाओ वहां पे। दैट शुड बी योर नोट्स। अब आप देखोगे जो पन्ने के ऊपर लिखा है उसका कंसाइज फॉर्म होगा जो आप कोरे कागज पे लिख रहे हो, है ना। देन आप ओरिजिनल टेक्स्ट उस पन्ने को खोलो, फिर देखो कि कौन सी चीजें मिस आउट हुई है। उस मिस आउट हुई चीजों को भी आप क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। अच्छा, ये चीजें भूल गए थे तो इनको भी हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती जाती है। आप जो भी पढ़ते हो उस चीज को जब आप लिखते हो, तब आपकी याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है, रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। करेक्ट। अलॉन्ग विद दिस, आप क्या कर रहे हो, जो आपके पास लेंदी कंटेंट है बुक का, उसको आप कंसाइज कर रहे हो थ्रू योर नोट्स, है ना। अब यही नोट्स आपको रिवाइज करनी पड़ेगी और एग्जाम के 2 दिन पहले रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो मेकिंग नोट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर हिस्ट्री प्रिपरेशन। आप जो भी पढ़ रहे हो, आप ये मत मान के चलो कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके दिमाग में सदा के लिए हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा दिमाग के अंदर। नहीं करना है तो प्रॉपरली उसको नोट डाउन करते जाओ, है ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग, जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे, ट्राई टू लर्न इट क्रोनोलॉजिकली। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ये क्रोनोलॉजी फॉलो करनी चाहिए आपको।
रैंडमली कुछ भी चीजें नहीं पढ़नी है। क्यों? उससे खिचड़ी पैदा हो जाती दिमाग के अंदर। सो यू विल ऑलवेज मेंटेन द क्रोनोलॉजी दैट आफ्टर दिस इवेंट हैपेंड, after that another event is happened, so there is a cause and relationship between each and every event. You have to maintain that events while you are studying, while you are preparing notes for your study. Okay, so notes making is a very serious and important business. Now these are the few points which you can use in your notes making. For example, charts, you can create charts, है ना? जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप एक टेबुलर फॉर्म में आप हो सकता है आपसे अगर, तो आप चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हो। अब जब आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हो किसी भी चीज का, तो वो आपके दिमाग में जरा ज्यादा समय के लिए फिट हो जाती है, ये सर्टिफाइड है ये चीजें। सो यू कैन क्रिएट अ चार्ट इन योर नोट्स बाय योर ओन, है ना? देन यू कैन क्रिएट अ माइंड मैप। व्हाट इज माइंड मैप? कि आप आपके जो भी नोट्स बनाओगे तब आप उसके कॉलम्स बनाओगे, अलग अलग हिस्से बनाओगे, बट हर एक हिस्से में एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। This is called as mind map. So you can create mind maps in your notes. So you can create a notes based on mind maps. Okay. Then keywords, focus on keywords always, है ना? बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, उनके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको अंडरलाइन करो, उनकी डेफिनेशन लिख के रखो, है ना? कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऑलवेज फोकस्ड ऑन कीवर्ड्स, हाईलाइट दोस कीवर्ड्स। टाइमलाइंस फॉर हिस्ट्री प्रिपरेशन, ऑलवेज मेंटेन क्रोनोलॉजी और द टाइमलाइन। ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही आएगा। आपकी नोट्स भी कुछ इसी तरीके से फॉलो करोगे आप लोग, है ना? सो दीज आर द सर्टन टिप्स फॉर योर नोट मेकिंग बिजनेस। नाउ नोट मेकिंग बिजनेस इज वेरी सीरियस एंड इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। देन प्रैक्टिस। हाउ डू वी मेक अ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री? सिंपली बाय गोइंग विथ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एमसीक्यूज। यहां पे आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला है पीवाईक्यूज, अनदर है मॉक टेस्ट टू प्रैक्टिस। अगेन पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर प्रिपरेशन। आप जब भी एमपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, किसी भी टॉपिक की प्रिपरेशन करो, व्हेनेवर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एमपीएससी एग्जामिनेशन, ऑलवेज स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द सिलेबस, देन गो फॉर द पीवाईक्यूज। पहले सिलेबस खत्म करो, दूसरी चीज हो पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करो। नाउ व्हाई दिस पीवाईक्यूज? Now these PYQs helps you to focus your studies. Now, for example, history is a vast subject. Ancient, medieval, modern, बहुत सारी चीजें पूछेंगे उसके अंदर. Then, where do you focus in this vast syllabus? So, PYQ will help you. PYQ, अगर आप पिछले 10-15 साल की PYQs को स्टडी करोगे, आपको उसके आंसर नहीं देने, उनके आंसर रट्टा नहीं मारने, आपको यह देखना है कि वो जो PYQs पूछे जा रहे हैं वो किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उस पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन की डेप्थ कितनी ज्यादा है, क्या वो सुपरफिशियल सवाल पूछे जा रहे हैं, आर दे आर गोइंग टू आस्क यू सुपरफिशियल क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक, और दे आर गोइंग टू आस्क यू एट द इसेंस ऑफ द एनी टॉपिक। एकदम डेप्थ में जाके सवाल पूछ रहे कि सुपरफिशियल सवाल पूछ रहे, अच्छा किस टॉपिक पे कितने ज्यादा सवाल पूछे गए, ये सारी चीज आप एनालाइज कर पाओगे। वंस यू एनालाइज योर पीवाईक्यूज, आपके सामने जो तस्वीर होती है प्रिपरेशन करने की वो क्लियर हो जाती है कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर कितना फोकस करना है और कितना समय देना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाती है। बट फॉर दैट यू नीड टू गो विथ योर पीवाईक्यूज। सो पीवाईक्यू हेल्प यू इन दैट डायरेक्शन। देन you have to practice with the mock test. So practice mock test. Now mock test will help you to decide the direction of your examination, of your preparation. My mistake. That whatever you are studying, है ना, whatever sources you are using, are these sources and these studies is going to help you in your examination. If you want to find the answer to this question, just give a mock test. आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी किताबें पढ़ रहे हो, क्या वो आपको सही दिशा में लेके जा रही है, इसका आंसर ढूंढना है तो मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट क्या करेगी, आपको समझाएगी, आपको बताएगी कि आप जो भी पढ़ रहे हो, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन जो भी पढ़ रहे हो क्या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या फिर गलत है, वो मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा। तब आप जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट देते जाओगे उतना ज्यादा आपका स्टडी फोकस होते जाएगा और एक ही दिशा में चलते जाएगा। अगेन दिस मॉक टेस्ट विल हेल्प यू टू कूल डाउन योर नर्वसनेस। बहुत बार कैसे हो जाता है कि बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते, जब एग्जामिनेशन के हॉल में जब उनके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पैटर्न्स को देख के, क्वेश्चन की लेंथ को देख के ही चक्कर आ जाते हैं उनको, है ना।
अगर इस तरीके की प्रॉब्लम से दूर हटना है आपको तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अंडरस्टूड? अभी के लिए आपके पास 5.5 महीने का समय है तकरीबन, तब आप वीकली मॉक टेस्ट दोगे, लेकिन जैसे ही आपकी प्रीलिम्स आएगी उसके 2 महीने पहले आप वहां पे डेली मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, क्योंकि तब तक कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादातर सिलेबस, और एग्जाम के पहले पहले आपके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी वहां पे। सो मॉक टेस्ट, गिविंग मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी फंडामेंटल फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, so go with the PYQs, go with the mock test, है ना? That's how you are going to practice your study. And the last thing is the revision. स्ट्रेटेजी के अंदर जो आखिरी चीज मैं आपको समझाऊंगा वो होगी रिवीजन। रिवीजन इज मस्ट। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तब आप पूरी मेहनत पे पानी फेंक रहे हो। इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम कंप्लीटली। ओके, सो रिवीजन इज वेरी वेरी इसेंशियल। ओके, रिवीजन हेल्प यू टू रिटेन योर कंटेंट। आप जो भी पढ़ रहे हो वो कंटेंट आपके दिमाग में आपको याद रखने के लिए मदद करेगा। How will you make a revision? So there are many formulas for revision. I personally recommend you weekly revision. Weekly कैसे रिवाइज करोगे आप? वीकली रिवीजन करोगे। दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। ऑलवेज गो विद द 6+1 डे मॉड्यूल। रेगुलर स्टडी फॉर द 6 डे, 1 डे फॉर योर रिवीजन, है ना? दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज इट। ओके, so 6+1 day revision formula, study formula is going to very very helpful for you. At a certain point of time into the future, you will find that the 1 day revision is a period of 1 day for your revision is not sufficient. You will require more time. Then go with the 5+2 days. क्योंकि आपकी पढ़ाई बढ़ गई, आपका कंटेंट बढ़ गया, तो रिवीजन के लिए समय भी ज्यादा लगेगा। दैट्स नेचुरल। सो दैट्स व्हाई 5 दिन की रेगुलर पढ़ाई करोगे तो 2 दिन का रिवीजन करोगे, लेकिन ये रिवीजन आप मिस आउट नहीं करोगे, उसको आप कभी भी हल्के में नहीं लोगे। यू नेवर लुक डाउन अपॉन योर रिवीजन। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, है ना? Because if you look down upon your revision, you are definitely going to get confused in your examination. आप फिर सोचोगे अरे इसका तो ये भी लगता है आंसर, उसका तो वो भी लग रहा है आंसर, ये गड़बड़ पैदा हो जाएगी। रिवाइज करो, कंफर्म हो जाओ, है ना? रिवीजन आपको कंफर्मेशन देगी। सो दैट्स व्हाई रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है आपको कि मान लो आप मंडे को पढ़ रहे हो तो आपने हिस्ट्री के एक चैप्टर को खत्म कर दिया। ट्यूसडे को जब आप पढ़ाई शुरू करोगे तो उसी चैप्टर को 5 मिनट में रिवाइज कर लो, फिर ट्यूसडे की पढ़ाई शुरू करो। वेडनेसडे को आप पढ़ाई करोगे तो ट्यूसडे की पूरी पढ़ाई 5-10 मिनट में रिवाइज कर लो, फिर वेडनेसडे की पढ़ाई शुरू करो। इस तरीके से आप डेली स्मॉल रिवीजन रखोगे, शॉर्ट रिवीजन। देन एट द एंड ऑफ अ वीक, 1 डे यू विल गोइंग टू हैव अ फुल मॉन्टी। आप वहां पे पूरी रिवीजन करोगे, उस एक हफ्ते के अंदर आपने जो भी पढ़ा है इस हिसाब से आप रिवीजन करोगे। अंडरस्टूड? देन यू आर गोइंग टू मेक अ रिवीजन फॉर मंथली, है ना? आप हफ्ते की होने के बाद मंथली रिवीजन करोगे, लेकिन आपके टारगेट्स आप सेट करोगे वीकली बेसिस पे कि एक वीक के अंदर मुझे 6 दिन में इतने टॉपिक कवर करने, फिर उसकी रिवीजन करनी है। सो दैट्स हाउ वीकली रिवीजन विल हेल्प यू टू रिटेन योर डेटा। रिवाइज जितना करोगे उतना आप कंफर्म होते जाओगे आपके डेटा के बारे में। सो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यू नीड टू फोकस्ड while preparing your examination. So always remember, first thing first, syllabus. अब पहली चीज क्या करोगे? सिलेबस को बाय हार्ट करोगे। कोई नींद में भी उठ के पूछेगा ना कि एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स कौन से, क्योंकि ये आपको फोकस रखेंगे पढ़ाई करते समय, आपको भटकने नहीं देंगे। Correct? So it will help you to remain focused in your during your preparation time. So first thing first, learn your syllabus thoroughly and completely. Second thing, go through your PYQs. Huh? There are many books available into the market. If you don't have a books into the market, so just contact us on this number 788 799 2834. Just give us a message or contact us on this number. You will get PDF of PYQs, NCRTs and all important material required for your preparation. Just contact on this number. Okay, so second thing is PYQ. Then another thing is notes making business. So you have to prepare your notes. Then next thing is practice through your mock test. And the last thing is revision. तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना जरूरी है। अगर आप इस तरीके से हिस्ट्री को प्रिपेयर करते जाओगे तो आप देखोगे कि हिस्ट्री के अंदर आप 15 में से मैक्सिमम सवालों के आंसर करेक्ट करके आ रहे हो। सो दैट्स द स्ट्रेटेजी फॉर योर हिस्ट्री।
All right. So Gnan Jyoti Education comes up with the Dheya batch, a new Dheya batch, correct? Now this Dheya batch is available in English and Marathi medium. This Dheya batch is specifically focusing on MPSC prelims examination, which is going to be conducted on the 28th September 2025. Now this batch is available in online and as well as in offline mode. In offline in Pune, it is going to conduct. What are the different specification of this batch? That in this batch we are going to provide you study materials. If you are enrolled in the online mode, then home delivery of the study material will be there. Important character of this batch is that there is a one-to-one mentorship. Every student will assign a mentor here, which is going the mentor is going to help you in your preparation. 24/7 there will be a contact. Now there are English and Marathi batches also, so these are the various specification of these batches. For more information, contact on this number 788 799 2834. Thank you.